Hello everyone. Very good evening to all of you. I hope all of you are doing wonderfully well. And I might be live slightly late your evening, but please feel free to ask me any questions that you would like. And for some reason, I might not be able to chat on my YouTube um, messages tab. I see there is some technical issue with that, but you can probably just also join me on Insta right now and I'll try to answer you over there. So today's video, we will mostly focus on your travels to Canada through whatever route we have right now. And apart from that, also about your passport submissions, um, medicals, refusals on study visa that many students are getting nowadays, and your vaccination status. So, how you can be exempt from your quarantine if you are fully vaccinated with the approved vaccines that are acceptable in Canada. So, let's begin with the first topic, which will be I'm trying to get my messages system on YouTube, but for some reason I cannot get it. So let me join you again on so please question me on Insta if there are any questions that you have. So first of all, students जिनके medicals expire होने वाले हैं या expire हो चुके हैं and you are waiting for IME numbers. IME नंबर्स का वेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज IME नंबर की एक स्टेटस अपडेट आएगा GC की पोर्टल पे और वो स्टेटस अपडेट कब तक आएगा हमें नहीं पता है. तो अगर हमारा वीजा बहुत देर से लगा हुआ है और सिर्फ मेडिकल की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्विकली अपना मेडिकल करवा लेना है, अपफ्रंट मेडिकल करवा लेना है. अगर आपका पुराना मेडिकल एक्सपायर हो गया है, CIC पैनल डॉक्टर्स आपको मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक अपफ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी आपका पुराना एक्सपायर हो चुका है मेडिकल. So please go ahead and do your medicals, right? So that is one thing. Without medical, आप medical valid medical आप travel नहीं कर पाएंगे. और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक करनी है on your GC की पोर्टल, specifically talking about medicals. अगर आपका मेडिकल एक्सपायर्ड था, आपने रीमेडिकल करवाया है, तो जाने के लिए आपको वो मेडिकल लेटर तो चाहिए ही जो आपने मेडिकल करवाया है. सेकेंडली आपको अपने GC की अकाउंट का स्टेटस भी चेक करना है क्योंकि लिए जब भी आपका मेडिकल एक्सपायर होता है वो आपके GC की अकाउंट से लिंक्ड है, तो आपका वीजा एक काउंटर फॉइल लेटर होती है आपके GC अकाउंट में जो कि इनवैलिड हो जाती है. तो अगर वो इनवैलिड हो जाए तो आपको इमिग्रेशन पे प्लेन बोर्ड करने नहीं देंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर medical and you also check your status, medical status. GC की अकाउंट पे आपको एक काउंटर फॉइल लेटर चेक करनी है कहीं वो इनवैलिड तो नहीं होगी. इनवैलिड हो गया मतलब कि वीजा ही वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि मेडिकल वैलिड नहीं है. सो ट्रैवल करने के लिए रीमेडिकल करना है और GC की अकाउंट चेक करना है बिफोर यू ट्रैवल, इवन इफ यू हैव बुक्ड योर फ्लाइट्स. So I have some questions on medical which I'll be taking right on. Medical is expiring on 6th September, but my flight is in first week of August. Is there any need for remedical? No, Taran, you can go ahead. There shouldn't be any need for medical because आपका 6th September को medical expire हो रहा है और अभी CIC पैनल डॉक्टर आपका मेडिकल करेगा अभी नहीं बिकॉज आपका पुराना मेडिकल एक्सपायर्ड नहीं हुआ है. बट देर आर सम स्टूडेंट्स आई नो जिन्होंने 1 month पहले टू ट्रैवल पैनल डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रीमेडिकल भी करवाया है. तो अगर आप बिल्कुल सेफ होके चलना चाहते हो और अगर कोई पैनल डॉक्टर आपका रीमेडिकल कर देता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट इट इज नॉट अ मैंडेट इन योर केस.
So we will come to different provinces study. Karan, we will talk about that slightly later. But for any provinces that you choose, जितने भी आपके provinces हैं जो कि छोटे हैं अभी, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है, या आपका कोई भी छोटा province है, सस्केचुअन है, मॉन्ट्रियल है, कोई भी और province है आपका, इसमें PR chances जल्दी है, PR जल्दी हो जाती है. तो अगर आप choose करते हो तो उसका main purpose PR और low fees होगी. So these are two reasons why you are choosing different provinces, and there's nothing wrong in doing it, because ultimately PR becomes a necessity for every student who is studying in Canada. Next we'll also talk about passport stamping in a while, but अभी medicals का हमने clear किया है. Second हम बात कर देंगे refusals की. तो आजकल आपने सुना होगा या देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉन एसडीएस में रिफ्यूजल आ रहा है. इनफैक्ट बहुत से एसडीएस केसेस में भी रिफ्यूजल हमने देखा है. सो प्लीज नोट दैट रिफ्यूजल्स इज नो ट्रेंड. रिफ्यूजल किसी का भी आ सकता है. 85% वाले का रिफ्यूजल आ सकता है और 52% वाले का एक्सेप्टेंस आ सकती है. रिसेंटली रिफ्यूजल्स जो हमने देखे हैं, ऐसा एक 2015-14 में भी कभी हुआ था कि बहुत से अच्छे केसेस पे भी रिफ्यूजल्स आ गए थे. तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके रिफ्यूजल्स आए हैं तो प्लीज अपनी फाइल को रीलॉन्च कर दीजिए. उसका रीजन ये है कि देयर इज हाई चांसेस कि फाइल एक्सेप्ट होगी. आई कैनॉट टॉक कि कोटा है या कुछ और है, इस वजह से एम्बेसी आपकी रिजेक्शन कर रही है. ये these people say such things, but this is not the truth, because immigration जस्ट विदाउट एनी रीजन आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि इमिग्रेशन पे भी चेक होता है, वीजा ऑफिसर्स पे भी चेक होता है. उनको एक प्रॉपर रीजन, वीजा नोट्स लिखते हैं वो जब भी आपका रिफ्यूजल देते हैं. सो इट इज नॉट सो सिंपल एज इट अपीयर्स. वीजा रिफ्यूज करने का भी कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज किया जाता है. तो अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, आपके अच्छा प्रोफाइल है, please go ahead and lodge your file again. Next, I'm going to talk about passport stamping, and after that, I'll be talking about travel to Canada through via routes. Okay, via routes से travel करना, direct route अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी start नहीं हुई है direct flights. So first is about passport stamping. जो passport stamping इस वक्त हो रही है वो बहुत ही जितनी पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो स्लो है. अभी सिर्फ पासपोर्ट स्टैंपिंग उन बच्चों की हो रही है जिनके या तो पासपोर्ट्स पहले वापस आ गए थे बिना स्टैंपिंग के जब उन्होंने पे किया था पासपोर्ट लिंक पे, या फिर जिनके पासपोर्ट्स पे कोई भी पासपोर्ट्स जिनके स्टार्ट की वेब फॉर्म पे उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी, लेकिन आगे कोई प्रोसीजर नहीं हुआ था, क्योंकि अप्रैल 20 के बाद हमारा ये बंद हो गया था पूरा. not April 20th, there was a date, particular date, जब हमारा passport stamping procedure, two-way courier process बंद हो गया था. I think it's April 20, when VAX also closed down again. So passport submission requests आपकी इस वक्त सिर्फ उन students की आएंगी जिन्होंने पासपोर्ट स्टैंपिंग सिर्फ उन बच्चों की होगी जिन्होंने ऑलरेडी पहले वेब फॉर्म रेज किए हुए थे, पेमेंट की हुई थी, या तो उनके पासपोर्ट वापस आ गए या उनके पासपोर्ट गए ही नहीं स्टैंपिंग के लिए, बट उनकी पेमेंट हो चुकी थी. सो ओनली इन लोगों के लिए इस वक्त पे आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट सबमिशन कलेक्शन और स्टैंपिंग होकर वापस आएगी. और किसी के लिए भी अभी वेब फॉर्म नहीं खुला है तो आप वेब फॉर्म के लिंक पे जाके अपना चेक कर सकते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो nothing is happening on passport collection for students उनका जिनका ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था बंद होने से पहले वैक्स. ओके, so that is on passport stamping, but don't worry. The thing is कि जिन भी बच्चों की पहले हमारा रह गया था पासपोर्ट स्टैंपिंग और उनके पासपोर्ट्स वापस आ गए थे, तो गुड न्यूज इज कि उन बच्चों को दोबारा से ईमेल्स आ गई हैं. द थिंग इज कि उनको दोबारा पे करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी ऑलरेडी कंजम्पशन हो चुकी है उस अमाउंट की जो उन्होंने पहले पासपोर्ट सबमिशन पे अमाउंट दिया था. सो दैट इज वन थिंग फॉर स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए. अभी बाकी के स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फेज ओपनिंग है, एकदम से वो कुछ भी ओपन नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिनके पासपोर्ट स्टैंपिंग भी पेंडिंग है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट about travel to Canada. Now most of the students
और यू नो अक्रॉस कंट्रीज पीपल आर अवेयर कि कोविशील्ड अगर आप लेंगे तो आपको ट्रैवल एग्जेम्पशन से आपको ट्रैवल क्वारंटीन एग्जेम्पशन मिलेगी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, या आपको ट्रैवल करना अलाउ किया जाएगा. बट द कैच इज यू हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड. आपको 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड लेनी है. विद 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा कनाडा में स्पेसिफिकली. पहले आपको पता होगा कि हमें 14 डेज क्वारंटीन करना पड़ता था, जिसमें 3 नाइट्स मैंडेटरी स्टॉप ओवर था होटल में. तो अगर कोई पार्शियली वैक्सीनेटेड है, जिसकी सिर्फ 1 डोज लगी है और वो ट्रैवल करना चाहता है, इन दैट केस आपको 3 नाइट्स का मैंडेटरी होटल स्टे ओवर भी करना पड़ेगा और 11 डेज आपको अपने प्लेस ऑफ क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा. आप बाहर नहीं जा सकते हैं. अगर आपने कोविशील्ड ना लेके कोवैक्सीन या स्पुतनिक ली है, जो कि अभी अप्रूव नहीं है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इन देयर ऑथराइज्ड वैक्सीन्स, आपको इमिग्रेशन पे कोई नहीं रोक सकता है अगर आपके पास वैलिड परमिट है. वैक्सीन एक आपके लिए एडिशनल फायदा है कि आप क्वारंटीन से बच सकते हो, पर अगर आप पार्शियली वैक्सीनेटेड हो या फिर आपके ने वो वैक्सीन ली है जैसे कोवैक्सीन या आपने स्पुतनिक ली है और आप ऑथराइज्ड नहीं, तो आपको ट्रैवल क्वारंटीन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा. तो कई बच्चों को ये डाउट है कि अगर हमने कोवैक्सीन या स्पुतनिक ली है तो हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते. प्लीज, इट्स नथिंग लाइक दैट. आप इजिली ट्रैवल कर सकते हैं जब आपने कोवैक्सीन भी ली है, स्पुतनिक ली है, कोई और वैक्सीन ली है या कोविशील्ड ली है. कनाडा आपको ट्रैवल करने से नहीं रोक रहा है. उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि अगर आपने एस्ट्राजेनेका बेस्ड कोविशील्ड नहीं ली है तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा. सो दैट इज अवर थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट, ट्रैवलिंग द वाया रूट्स. So suppose you are, you are not getting a direct flight. आप काफी देर से इंडिया में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है और आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल कर सकें जल्दी से जल्दी. तो कुछ वाया रूट्स हैं जो काफी सक्सेसफुल रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट. दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन बट दिस इज जस्ट अ सजेशन दैट इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल एंड यू डू नॉट हैव अ चॉइस, फॉर एग्जाम्पल कोई पीआर है, कोई सिटीजन है, कोई रिटर्निंग वर्कर है, कोई स्टडी स्टूडेंट है जो बहुत टाइम से इंडिया में फंसा हुआ है, जिसकी बार बार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, सो प्लीज फील फ्री टू चूज अ रूट विच यू थिंक इज कन्वीनियंट टू ट्रैवल. सो आई ट्रैवल टू कनाडा थ्रू द मैक्सिको रूट और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस रूट में. इट इज अ वाया रूट अगेन. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर ट्रैवलिंग थ्रू सर्बिया रूट ऑल्सो. तो इस वक्त मैं सिर्फ 2 ही रूट्स रेकमेंड कर सकती हूँ, विच इज मैक्सिको एंड सर्बिया. बट सर्बिया में एक नई नोटिफिकेशन आई है. पहले सर्बिया में आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ता था, पर अब 7 डेज का मैंडेटरी क्वारंटीन सर्बिया में भी करना पड़ता है और ऑब्वियसली वहां पे एक आरटीपीसीआर टेस्ट होगा ही आपका. Now when I talk about Mexico, मेक्सिको में आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ, या जिस होटल में आप रहेंगे फॉर 1 नाइट वहां पर होगा. नेक्स्ट डे ही आप कनाडा में फ्लाइट अपनी ले सकते हो. So right now the best choice would be Mexico, but whenever you are making a choice of traveling via route, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे आपको नहीं रोका जाएगा. आपको किसी भी एयरपोर्ट पे कभी भी रोका जा सकता है फॉर एनी क्वेश्चनिंग. आपको प्रूव करना है कि आप कनाडा जा रहे हो किस पर्पज से. तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप जाते हैं और आप वाया रूट ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पे वो आपसे आपकी फर्स्ट डेस्टिनेशन पूछेंगे. सो फॉर एग्जांपल आप मेक्सिको से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंडिया से आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना है, आपको टिकट एंड होटल बुकिंग इन मेक्सिको दिखानी पड़ेगी, तभी आप वो रूट लेके मेक्सिको जा सकते हैं. फिर जब उसके बाद आप इमिग्रेशन चेक पे जाएंगे तो इमिग्रेशन चेक पे पूछा जाएगा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं मेक्सिको. तो या तो वो कहेंगे मेक्सिको से रिटर्न टिकट दिखाइए टू इंडिया, या आप मेक्सिको से कहीं ऑन गोइंग जा रहे हैं तो वो लेटर दिखाइए. सो बेसिकली एट इमिग्रेशन आपको कनाडा की टिकट भी दिखानी पड़ेगी. So if you're traveling to Canada through a via route, you should have in your hand RT-PCR negative test from India. You should have your ticket to Mexico, then from ticket from Mexico to Canada. ये आप and hotel booking in Mexico. तो ये आपके पास होना चाहिए. Similarly would stand for Serbia, but in Serbia cases now you have to do a 7 nights quarantine in Serbia, जो कि मेक्सिको में नहीं करना पड़ता है. मेक्सिको में सिर्फ 1 नाइट आप क्वारंटीन
नॉट इवन क्वारंटीन, मैक्सिको में सिर्फ एक नाइट आपको रहना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने टेस्ट का वेट करना है जो आपने एयरपोर्ट पे मैक्सिको पे पहुंचते ही दे दिया है, और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट डे टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद टू टोरंटो और वेयर एवर योर flight will be. So that is about the via routes. Via routes can be very exhausting because they are long. आपको वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेकर जाते हैं और आपको प्लेन चेंज भी करना पड़ता है, तो समटाइम्स थोड़ा सा लॉन्ग होता है और एग्जॉस्टिंग हो सकता है वाया रूट, बट इट इज सेफ एंड इट इज जस्ट लाइक ट्रांजिशनिंग थ्रू एनी अदर वाया फ्लाइट्स जब आप पहले लेते थे। सिर्फ तीन जगह आपका टेस्ट होगा जब आप वाया रूट से जाते हो। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट। वन, इन योर पोर्ट ऑफ डिपार्चर जो इंडिया है, वन इन योर पोर्ट ऑफ अराइवल जो आपका वाया डेस्टिनेशन है, से मैक्सिको और सर्बिया, वहां आपका एक आरटीपीसीआर होगा और यहाँ पर आपको पेमेंट इस आरटीपीसीआर की खुद करनी पड़ेगी। सो इन मैक्सिको इट वाज I think 2,000 Mexican pesos, which is 112 USD. तो वो एक्सपेंस आपको खुद बेयर करना पड़ता है। फिर मैक्सिको में या सर्बिया में जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है रहने की उस कंट्री में आप वहां रहेंगे और नेगेटिव टेस्ट के साथ ही आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। द रीजन बीइंग कि इंडिया का आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट अभी कनाडा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको वाया रूट से ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप कंपल्सरी अभी ट्रैवल करना चाहते हैं तो। बट देयर इज अ रीसेंट न्यूज रिगार्डिंग, आप एयर कनाडा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वेयर दे हैव सेड कि वो 1 अगस्त से फ्लाइट स्टार्ट करने वाले हैं टू टोरंटो एंड फ्रॉम 16 अगस्त टू वैंकूवर। नाउ दिस हैज बीन अनाउंस्ड ओनली बाय एयर कनाडा और ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की अनाउंसमेंट नहीं है अभी। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की अनाउंसमेंट के लिए हमें अभी 21 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। ये जो रिसेंट बैन एक्सटेंड हुआ था वो 21 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ था। So anybody who's joining me on YouTube right now, I cannot answer your questions on YouTube because I'm not able to see my message box for some reason. So commenting box. So if you can please join me on Insta, and if you have any questions, ask me questions over there. Please, that will be more helpful. Yes. So if you are planning to travel to Canada, please drop me a message. I will try to help you. Choose the best route. If you are planning to travel directly, when the direct flights open, जो हमें 21 जुलाई तक वेट करना है, 21 जुलाई के बाद हमें पता लगेगा कि कब वो डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हो सकती है। उससे पहले कोई हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन होंगी या नहीं, इवन दो एयर कनाडा की वेबसाइट पे डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स वो 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉल करी उसके बाद टू यू एयर कनाडा और उन्होंने बोला है कि श्योरिटी तभी होगी जब 21 जुलाई को ये पता लगेगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक्सटेंड तो नहीं कर रही है बैन ऑन डायरेक्ट फ्लाइट्स। रिसेंटली एक न्यूज आया है जो आप हिंदुस्तान टाइम्स के पोर्टल ऑनलाइन पेज पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहां पर मेंशन किया गया है that the government of India has actually requested the government of Canada to start direct flights from India. So हम hopeful हैं, we are optimistic कि बहुत ही जल्दी direct flights start हो जाएंगी। But please remember, जब भी direct flight start होगी वो costly होगी, seats कम होंगी, बिकॉज पहले से भी जिनकी बुकिंग हो चुकी है डायरेक्ट फ्लाइट्स में वो लोगों की फ्लाइट दे आर स्टिल देयर in the system and they will be picking up their seats. It is going to be expensive, so you should save some extra money for your tickets. जो कोई स्टूडेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है इंडिया में और वो ऑनलाइन अपनी स्टडी 1 सेमेस्टर के लिए कर रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। बट प्लीज रिमेंबर कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होती है तो आपका मेडिकल वैलिड होना चाहिए, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होनी चाहिए, आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ योर फ्लाइट। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो आप ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो विद अ वैलिड परमिट इन योर हैंड। Permit can be PR card, permit can be a citizenship, your passport, permit can be your returning work letter, and that you're employed with the company, permit can be returning student or a valid student permit or a new study permit with a visa stamp. इन सब के साथ आप इजिली ट्रैवल
कर सकते हैं. There should not be any problem, because on my way of personally from travel, I have seen people traveling all through and there hasn't been any problem at all, right? So these are few things that you need to take care of when you are to traveling to Canada through a wire route, for example. Now the next thing that you should ideally आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, नेगेटिव आरटीपीसीआर आपको लेना है विद इन 72 आवर्स अपनी फ्लाइट से पहले. आप सिर्फ एक वैलिड जो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब है इन इंडिया वहीं से ले सकते हैं. तो प्लीज अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करने से पहले चेक करें कि आईसीएमआर अप्रूव्ड वो लैब है कि नहीं है. Now let's talk about some more profile. Like I have some questions where it's asked that after filling web form, how much time it will take to attach that document and file. देखिए, अगर किसी ने री-मेडिकल करवाया है, आप री-मेडिकल वेब फॉर्म पे सिर्फ उसका एक री-मेडिकल का आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है अपने पैनल डॉक्टर से, वो आप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं वेब फॉर्म के साथ. तो आपने वेब फॉर्म रेज किया जिसमें आपने सारी डिटेल्स भरी और आप साथ में ही वो मेडिकल को अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे. ये सबमिशन के बाद 30 डेज लगते हैं फॉर द एम्बेसी. वो लेती है 30 डेज इन ऑर्डर टू अपडेट अ रिकॉर्ड, बट कई केसेस में जल्दी भी हो जाता है. बट 30 डेज उन्होंने लिखा होता है इन देयर ऑटोमेटेड मैसेज ऑल्सो. तो आपको 30 डेज मिनिमम वेट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट एनी अपडेट ऑन योर रिकॉर्ड फॉर योर न्यू सबमिशन. इट कुड बी एलओए, इट कुड बी अ कवर लेटर, आपने कोई फी रिसीट अपडेट करनी है, आपने मेडिकल अपडेट करना है. एक बात और याद रखिए, आपको कभी भी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी अपने पैनलिस्ट डॉक्टर से. वो खुद ही आपके न्यू मेडिकल को अपने पुराने मेडिकल से लिंक कर देंगे आपके फाइल पे. तो प्लीज जब भी आप री मेडिकल करवाने जाएं, आप अपने डॉक्टर को ध्यान से ये बात बताइए कि वो आपके न्यू मेडिकल रिपोर्ट्स को आपके यूसीआई नंबर से लिंक कर दें. तभी सीआईसी को, तभी आईआरसीसी को आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिलेंगी. Now there's somebody asking me if someone has a valid visitor visa, is he or she eligible for travel? Now जिनके पास भी इस वक्त विजिटर वीजा है और वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है ऑफ अ परमानेंट रेजिडेंट और अ कनेडियन सिटीजन, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं. इमीडिएट फैमिली मेंबर में आपके पेरेंट्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, स्पाउसेस आते हैं. दीज आर द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं, तो ये सब ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनके पास वैलिड विजिटर वीजा है और उनका जो रिलेटिव कनाडा में है वो पीआर या सिटीजन है. अगर आपका रिलेटिव टेम्पररी रेजिडेंट वीजा पे है, जैसे कि स्टडी वीजा और वर्क वीजा, तो वो इस वक्त एलिजिबल नहीं होंगे ट्रैवल के लिए, अनलेस यू हैव एन एग्जेम्पशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. एग्जेम्पशन की एक ईमेल आईडी है जो आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पे मिल जाती है, और वो आपको एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, इसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, लाइक बर्थ ऑफ अ चाइल्ड or it could be death of someone, right? Yes, so if anybody's so if somebody has, okay, so Arjav has updated IELTS band score. So Arjav, you have to tell me अगर आपके IELTS band score की requirement आई थी आपके GC की अकाउंट पे कि नहीं, कि GC की अकाउंट पे भी एक ब्लॉक होता है IELTS स्कोर कार्ड को अपलोड करने का. So that is something you need to check. नहीं तो अगर वेब फॉर्म पे अपलोड किया तो 30 डेज का वर्किंग डेज का आप मिनिमम वेट करें before you get some intimation from Canadian High Commission. So guys, traveling to Canada right now is the biggest question. आप travel कर सकते हैं, प्लीज कोशिश करिए कि आप वैक्सीनेटेड फुली हों. आप क्वारंटीन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि क्वारंटीन में अगर आप जाते हैं तो आपको 14 डेज के लिए लिटरली अंदर रहना पड़ता है, और उस टाइम पे फूड अरेंजमेंट या आपका हर तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते हैं. बाहर से ऑर्डर जरूर कर सकते हैं, पर आप बाहर जा नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको एवरीडे ट्रैकिंग होती है अराइव कैन ऐप पे. So these are the main things that you should know before you plan to travel to Canada. Now there are some students जिनका डेफरल हो रहा है, या कई कॉलेजेस इस वक्त डेफरल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो
डेफरल वो इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि December 31st 2021 तक अलाउ किया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको ऑनलाइन स्टडीज करने का। तो अगर डेफरल अलाउ नहीं कर रहे हैं और रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एनरोलमेंट लेटर या ट्रांसक्रिप्ट आप वेब फॉर्म से अपलोड करके कनेडियन हाई कमीशन को भेज सकते हैं, with which it can leave a positive impact on your file, that your intention was really to study. So even in India you are actually studying. तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज ऑनलाइन स्टडीज अपनी स्टार्ट करिए। ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट करके उसको पढ़ना भी है, बिकॉज आप फेल नहीं हो सकते एकेडमिकली, आपको सक्सेसफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिफंड में प्रॉब्लम आएगी अगर बाद में आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो। नाउ I know the wait times have been really, really long for students who are waiting either for their results or for biometrics or for passport submissions. But अब आपके वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स खुल गए हैं, जो जिसको VFS भी कहते हैं, वो खुल गए हैं। तो बायोमेट्रिक्स आर ऑन अ गो, कंटिन्यूसली बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, एंड आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग का भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है जिनका पासपोर्ट स्टैंपिंग की वेब फॉर्म ही नहीं रेज हुआ था। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं, जिन बच्चों ने 15 मई 2021 से पहले अपनी फाइल सबमिट की थी, आइडियली उनके रिजल्ट्स August 6, 2021 तक आ जाने चाहिए थे, बट या आ जाएंगे as it was mentioned. But remember, they mentioned that May 15, 2021 तक कंप्लीट फाइल सबमिट होनी चाहिए, तभी रिजल्ट August 6 तक आएगा। तो इस बेसिस पे आपको अपने फ्यूचर का डेफरमेंट और ट्रैवल्स प्लान करने हैं, बिकॉज August 6, 2021 तक अब वही उन्हीं बच्चों के रिजल्ट्स आएंगे जिनका बायोमेट्रिक प्लस मेडिकल सबमिटेड था बिफोर May 15, 2021। बाकियों के रिजल्ट्स आने में डिले हो सकता है क्योंकि बायोमेट्रिक्स तो हमने बाद में किया। सो कंप्लीट फाइल ऑल इंक्लूड्स मेडिकल as well as biometrics along with all the other documents that you submit for your visa filing. So these are the main things that I wanted to tell all of you today about medicals. Please take care of your GC key account. Medical करवाने के दोबारा करवाने के बाद GC की अकाउंट को जरूर चेक करिए, उस पे एक काउंटर फॉइल लेटर होती है, वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इमिग्रेशन से क्रॉस नहीं करने देंगे। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है तो कनाडा ट्रैवल करने से पहले आपको री मेडिकल करवाना जरूरी है, वैलिड मेडिकल से ही आप ट्रैवल कर पाएंगे। पासपोर्ट सबमिशंस अभी सिर्फ उन बच्चों की हो रही है, 2-वे कलेक्शन जो होती है, जिनने ऑलरेडी अपना पासपोर्ट सबमिशन प्रोसेस अभी ये जो रिसेंट लॉकडाउन है उससे पहले स्टार्ट कर दिया था, और अगर उस टाइम आप पेमेंट कर चुके थे और आपका पासपोर्ट वापस आ गया था तो वो वाला अमाउंट कंज्यूम हो चुका है, आपको नेक्स्ट दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी पासपोर्ट सबमिशन और कलेक्शन के लिए, स्टैंपिंग होगी जिसमें। नेक्स्ट ट्रैवल टू कनाडा, वी आर होपफुल कि जल्दी ही डायरेक्ट फ्लाइट्स खुल जाएंगी, तो 21 जुलाई तक हमें वेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। हाउएवर, एयर कनाडा ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर फ्लाइट्स फ्रॉम द 1st of August, पर वो तब तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं ले सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उनको बैन नहीं हटा देती है। एडिशनली इंडियन गवर्नमेंट ने कनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो जल्दी ही अपना डायरेक्ट फ्लाइट बैन जो है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा वो लिफ्ट कर दें। सो वी आर होपफुल दैट यू विल गेट अ पॉजिटिव न्यूज ऑन डायरेक्ट फ्लाइट्स. Also, please take Covishield for now. That is the only one Indian acceptable and authorized vaccine अगर आपको क्वारंटीन exempt होना है. बट अगर आप partially vaccinated हैं और आपने कोई ऐसी वैक्सीन ली है जो कि ऑथराइजली अप्रूव नहीं है अभी बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, वो आपको ट्रैवल से बाहर नहीं करता है, आपको सिर्फ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा फॉर 14 नाइट्स इंक्लूडिंग 3 नाइट्स होटल स्टॉप ओवर. नेक्स्ट, रिफ्यूजल्स हैज नो ट्रेंड. रिफ्यूजल जिसका भी आया है स्पेशली एट दिस टाइम, प्लीज अपनी फाइल को रीलॉन्च करें और जल्दी से जल्दी रीलॉन्च करें ताकि आपको अपने इनटेक स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट मिल सके. नाउ रिगार्डिंग क्यूबेक,
institutions. हमें notification आई है through some institutions like CDI, MCIT and few more. कि उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है फ्रॉम देयर ऑडिट एजेंसी, जो प्रोविंस ऑफ मॉन्ट्रियल जो उनका ऑडिट कर रही थी, बट और उनकी रिक्वेस्ट लेटर्स आई होंगी, सब स्टूडेंट्स को आई हैं रिक्वेस्ट लेटर्स, जहां पर उन्होंने सबमिट करना है प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, प्रूफ ऑफ जीआईसी, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और अगला 1 ईयर का उनका स्टडी प्लान क्या है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके भी ये रिक्वेस्ट लेटर आई थी उनकी सबमिशंस हो चुकी हैं हमारी कंपनी की तरफ से, एंड आई एम श्योर कि बाकी कंपनीज की तरफ से भी हो चुकी होंगी. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्वेस्टिगेशन का बेसिस ही यही था कि कई जगह पर फ्रॉड कमिट हुआ था, फॉर्ज्ड ऑफर लेटर्स थी, एंड देयर वर वेरियस अदर इश्यूज. And now we are hopeful कि request letter submit होने के बाद within 30 days we are looking at some sort of results, because 30 days after every submission में लगते हैं to give any result on any application at all, अगर आपने कोई भी document submit किया है. So a lot of request letters were aimed to be submitted for the 1st or the 2nd of July, and having said that, 30 days तो हमें अभी wait करना पड़ेगा before we can think कि किस तरह के results आते हैं from the Ministry of Quebec. Yes, so exactly, Arjav, so that's what it is. So I'm hopeful कि जो भी बच्चे क्यूबेक के वेट कर रहे हैं उनके जल्दी रिजल्ट्स आ जाएं, because many of them are waiting for more than 1 year now. So this was a crux of what I wanted to tell you about traveling to Canada right now, and documents जो must carry हैं आपके लिए, वो आप as a student तो बिल्कुल नहीं भूलें, ध्यान दें, बिकॉज इमिग्रेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. हर जगह पर आपको क्वेश्चनिंग करी जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका क्वारंटीन है और कहाँ कहाँ आपको स्टे करना है. I'll be posting a video which will show you my travel to Canada via Mexico, which I very recently did, and it might be helpful for some who want to travel via Mexico. But by 21st July आपको बहुत clarity मिल जाएगी क्या direct travel ban अभी extend हुआ है कि क्या वो remove कर रहे हैं, and post that you can take the decision of traveling to Canada through whichever route will be applicable for you. So that's all for today, and thank you for everybody who joined in the call, in the live session today. And I will try and bring more updated information to all of you. और अगर आपकी कोई भी particular queries है तो please आप email करें या WhatsApp करें. हमारे numbers हमारे YouTube channel पे और Instagram पे displayed हैं, Facebook पे displayed हैं. You can just get them from there. And if there's anything else that I can help you with, I'll stay here for about 10-20 seconds more, and आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो रिसेंटली एक स्टडी परमिट वेबिनार हुआ है बाय IRCC. कुछ बहुत ही कंक्रीट आंसर्स तो नहीं है उनके रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स वर पोजिंग, बट यस, फॉर मेडिकल्स and for passport submissions, as I have told you, वही बात हुई है उस वेबिनार में भी. और रिफ्यूजल्स के बारे में वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं. वैक्सीन के बारे में कोविशील्ड रेकमेंडेड है. अगर आपने दूसरी वैक्सीन ले ली है तो प्लीज़ डोंट वरी, आप उसी वैक्सीन का दूसरी डोज लेकर भी जाकर ट्रैवल करके बस क्वारंटीन होना है आपको. So that's what it is. And if there's anything else that I can help you with, please let me know on my email ID or on my contact number, right? So thank you all for joining in today, and I hope to see all of you very soon again. Thank you. Thank you, Arjav.